Good morning, students. Today we discuss about the lag operations and the lag operations theory. So first of all, what is lag operand and who discovered that lag operand theory? So in 1961, the two scientists, that is Jacobs and the Monod, in 1961 they isolation or they identify the theory. They identify the regulation of gene expression, how the genes are expressed, whether there is a necessary of to express or whether there is not necessary of to express. So these two scientists are identified the theory. So what is meant by lag? Lag means your lactose. Lag means your lactose. Lactose relates to sugar. So this is theory is based on whether glucose is secreted, expressed, or whether the glucose is not expressed. So first of all, let me tell you with the theory. So there are three examples. Well, it is always done in prokaryotes because your eukaryotes there is the nucleus is identified, but in your prokaryotes the nucleus is not identified. So that this lactose operation we are isolating or we are studying in the prokaryotes cells or prokaryotes nucleus. So there are the three enzymes which are we use or the scientists use for the study. There is a beta galactosidase, second yours permease and your transacidylase. These are three enzymes. So I am directly come to the point with the theory. So here is a diagrammatic functions. Okay. So here, if there is a the lack of there is a secretion of glucose, there is secretion of glucose or the lack operation system is on. So we call it a on system because there is a secretion of glucose. There is a hydrolysis of glucose, and when the system is off, so this is the off. So all this theory was based on the on and off. यही पे सब आपका डिपेंड है. तो उसमें here are 5 factors are responsible. One is your regulatory genes, second is your promoter, your operator, your MR, your genes are there, your repressor and your inducer. So what happened? This is your regulatory genes. I am taking the 5 points at the same time, not single one. एक ही साथ में 5 पॉइंट ले लूंगा इसके मदद से. ओके. सो व्हाट हैपेंड? लिसन केयरफुली. अभी यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स है. अब व्हाट हैपेंड हियर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस. रेगुलेटरी जीन्स है. रेगुलेटरी जीन्स क्या करेगा? एक्टिवेट होके एमआर जो आरएनए है, आरएनए को ऑर्डर देगा कि आप भाई रिप्रेसर बनाओ या फिर आप प्रोटीन बनाओ टू मेक द प्रोटीन. So what happened? The regulatory genes, your promoter and operator, these are linked together. तीनों का साथ में linked है. कैसे? समझा देता हूँ. अब suppose ग्लूकोज ऑन हो गया, सिस्टम ऑन हो गया. ओके? नहीं पहले तो उसको ऑफ करते रहे. First of all we take it off. When the glucose lack of the system is off, so what happened? Regulatory genes हो गया. अगर regulatory genes RNA को secrete करेगा, फिर बाद में प्रोटीन बनाएगा. तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा? What happened? This regulatory genes has to bind with your promoter and operator. Promoter means which inhibit or which enhance कि भाई आप करो. Promote and operator who are the operation genes. सिंपल सी बात है. Regulatory genes इस promoter और operator के साथ bind होके अगर ये दोनों bind हो गए तो DNA से जो RNA है वो बनेगा नहीं. It inhibit the process, which stop the process. Which are the stop the process. So there is a hydrolysis of glucose is not occur here. क्योंकि ये बंदा इसके साथ बाइंड, प्रोमोटर और ऑपरेटर के साथ बाइंड होके इसको मना कर रहा है नहीं भाई आप ये प्रोसेस मत करो, आप यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, आपकी जरूरत नहीं है. You do not have to express here. सिंपल. अभी क्या हो रहा है? एक ही जो प्रोमोटर जो है वो 3 जीन को एक ही साथ में कन्वर्ट कर रहा है. Here are your 3 types of genes which are controlled by a single unit. तीनों के तीनों genes एक ही यूनिट के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं. मतलब one thing perform many options. ठीक है. तीनों जीन यहाँ पे वो कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है. तो रेगुलेटर जो जीन्स है वो प्रमोटर और ऑपरेटर के साथ बाइंड होके वो सिंथेसिस जो हो रहा है वो जो ग्लूकोज का जो कन्वर्शन उसमें हो रहा है वो स्टॉप कर देगा क्योंकि वहाँ पे जरूरत नहीं तो वो स्टॉप कर देगा. तो वो इनहिबिट कर रहा है. अब यहाँ पे वो बाइंड हो चुके हैं. अभी ये तीनों बाइंड होते हैं. ये तीनों बाइंड होते हैं तो ये जो सिस्टम है ग्लूकोज की, द ट्रांसक्रिप्शन और द ट्रांसलेशन प्रोसेस, द कन्वर्शन ऑफ mRNA
टू डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन स्टॉप कर देगा, मतलब वो ऑफ करेगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अब यहाँ पे तो ऑफ हो गया, तो सिस्टम लैक ऑपरेशन इज ऑफ। व्हेन द लैक ऑपरेशन सिस्टम इज ऑन, तो अभी ऑन होता है क्या होता है, सेम ये रेगुलेटर जीन्स क्या करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस करेगा कि अभी ये यहाँ पे एक्ट होगा, आरएनए रेगुलेटर के साथ प्रोमोटर के साथ एक्ट होगा और ऑपरेटर्स के साथ एक्ट करेगा, तो वो बाइंड नहीं होने देगा। दे आर इनएक्टिव, दी बोथ आर इनएक्टिव एंड दिस इज कंप्लीटली गोइंग ऑन टू रिप्रेस इंड्यूसर। दो फैक्टर है, एक रिप्रेसर है, एक इंड्यूसर है, वो मैं बताना भूल गया। रिप्रेसर में क्या होता है कि वो प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, जो भी हाइड्रोलिसिस वहाँ पे हो रहा है, जो डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, एमआरएनए जो बन रहा है, वो प्रोसेस को स्टॉप करना मतलब रिप्रेस, क्योंकि ना रिप्रेस। एंड सेकंड इज इंड्यूसर, स्विच ऑन, कि भाई इंड्यूस कर रहा है कि आप करो, जहाँ पे जरूरत है आप करो। तो यहाँ पे तो रिप्रेसर एक्ट हो गया था, तो प्रोसेस को स्टॉप किया था। सेकंड थिंग में क्या होता है कि जब स्विच ऑन रहता है, लैब ऑपरेशन सिस्टम जब ऑन रहता है, so there is a inducer is performing his actions, वो इंड्यूस करता है। So what happen, the regulator genes are bound with RNA and RNA perform the transcription functions to form proteins, and the main enzyme is their beta galactosidase. I told you DNA, the beta galactosidase which are hydrolysis with the Escherichia coli bacteria, जो बैक्टीरिया E. coli उसमें ग्रोन किया था। So the lactose and galactose, उसको दोनों का मिला के आपका लैक्टोज हो गया था, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, तो ऑन जब सिस्टम रहता है तो प्रोमोटर और ऑपरेटर दोनों इनएक्टिव रहते हैं। अगर ये तीनों बाइंड हो गए एक साथ में तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं देगी नहीं, जो डीएनए से आरएनए बनने देगा नहीं। बट इफ ही इज नॉट ऑपरेटर और जो प्रोमोटर है वो अगर बाइंड नहीं होते तो स्विच ऑन रहता है, मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। अभी जो ये है जो पॉलीसिस्टोनिक, तीनों जीन्स को व्हिच आर कंट्रोल, पॉली मींस मेनी, सिस्टोनिक जो प्रोमो जीन्स, तो तीनों जीन्स को कंट्रोल कर रहा है, तीनों जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज योर पॉलीसिस्टोनिक। तीन आरएनए है, आरएनए तीन हुए लेकिन एक ही बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है, एक ही बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो हो गया पॉलीसिस्टोनिक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लैब ऑपरेशन सिस्टम्स which are asked in examinations. Mainly, let me brief you again. लैब ऑपरेशन सिस्टम 1961 में जैकोस और मोनोड ने उसको डिस्कवर किया था। किसमें? ग्लूकोज मींस शुगर। ओके, अभी इसमें दो थे, एक रिप्रेसर है, एक इंड्यूसर है। रिप्रेस जो प्रोसेस को रिप्रेस करता है, स्टॉप कर देता है, इंड्यूसर सिस्टम को ऑन कर देता है कि नहीं भाई आप जाके करो। तो जब लैब ऑपरेशन सिस्टम ऑफ रहता है तो ऑन, एक टाइम पे ऑन रहता है, एक टाइम पे ऑफ रहता है। जब ऑफ रहता है तो रेगुलेटर सिस्टम जो है प्रोमोटर और ऑपरेटर्स के साथ बाइंड होके सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। अब क्या, लैब ऑपरेशन सिस्टम ऑन, बट व्हेन द रेगुलेटर सिस्टम नॉट बाइंड विद देम, सो वी डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस हियर। तो यहाँ पे बाइंड होता नहीं है, तो सीधा इसका जो कन्वर्शन है डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस जो भी होगा वहाँ पे बनेगा, तो लैब ऑपरेशन सिस्टम गेट्स ऑन। अब तीन एंजाइम रहते हैं, तीनों को एक ही बंदा कन्वर्ट करता है, तो पॉलीसिस्टोनिक, क्योंकि मेनी तीन चार जीन्स को एक ही टाइप पे कंट्रोल कर रहा है। ओके, मेनी जीन्स एंड द मोस्ट एग्जाम इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये जो एंजाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी स्टॉप, थैंक यू सो मच।